Kumar Mishra, who has made remarkable contribution to the field of education and whose insights are sure to inspire and challenge us. With your permission, sir, I'd like to read your profile. Professor Pramod Kumar Mishra is a leading academician specializing in artificial intelligence, machine learning, and data sciences. His research interest areas are AI data science, big data analytics, machine and deep learning, IoT and HPC algorithms, and AI in healthcare. His research has been published in top-tier journals and conferences, influencing both academic discourse and real-world AI applications. Now, I would like to call Administrator Ma'am, Dr. Shalini Singh, Principal Sir, Dr. Rajiv Sir, to come forward and felicitate our esteemed guest. Professor Mishra to proceed with the session, please. So today's lecture is based on the AI, machine learning algorithms and data science. So we will cover these three things in our talk. First one is fundamental of data science and applications. So we will explore what is the data science, how we study the data science, and what are the applications of the data science. Next part is AI and machine learning algorithms, because we have to, data is nothing if we don't have any algorithms, if we don't have any logic. So that is the base. So that is the tool is AI and machine learning algorithm. Next one is metaverse. Metaverse, that is the digital society. We will discuss about some concept of metaverse. Okay. So data science is nothing but it is a multidisciplinary field which includes that is the mathematics, statistics, computer science, system models, and algorithm which extract the knowledge from the data. Okay, to make the insights from many structured and unstructured data. It uses the techniques and theories drawn from many fields within the context of mathematics, statistics, domain knowledge, and the information science. Turing Award winner Jim Gray imagined data science as a fourth paradigm of science, that is empirical, theoretical, computational, and currently we are in the phase of data-driven approach. Data, so we are generating the data from the various sources. You can see from the ATM machine, we are generating from the banks, televisions, and so many more. So you can see here what are the percentage from the various sectors. So on the basis of this result, we can say that data is the new oil, because if you don't have data, we can't do the business, we can't do anything. Okay, this is basically the context is from the World Economic Forum in 2011. And the same concept is also driven by the Harvard Business Review, that is data is the new oil of the digital economy. You can see that is why data science is the digital economy of the globe, because you can see Google earned revenue around $50 billion per year from the marketing through the data only. Next one, 97% of the company's revenue. गूगल की जो रेवेन्यू है 97%
कहाँ से आ रही है? डेटा ड्रिवन अप्रोच से आ रही है। यू कैन थिंक व्हाट इज द डेटा। Sponsored search usage and auction, a pure competition for marketers trying to win access to the consumers. In other words, a competition for models of consumers, their likelihood of responding to it and of determining the right bid for the item. हम सब लोग कुछ सर्च करते हैं, आप गूगल सर्च बार में कुछ टाइप कर देते हैं और हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, टॉप 10 रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो आपने क्या सोचा है कि उससे भी गूगल रेवेन्यू अर्न कर रही है? जब आप कुछ टाइप करते हैं, कोई भी वर्ड आप डालेंगे, जैसे आप सरगीम डालेंगे, तो सरगीम की जो टॉप 10 लिस्टिंग है, तो गूगल का एक मॉडल है, वो मॉडल बिडिंग करता है, ऑनलाइन बिडिंग करता है, और जो ज्यादा कॉस्ट पे करता है उस टाइम पे उसको टॉप 1 में रखता है, एंड सो ऑन। तो वहां से भी वो जो हम सर्च कर रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो वहां से भी वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ओके, एंड यू कैन सी देयर आर अराउंड 30 बिलियन सर्च रिक्वेस्ट इन अ मंथ। कितने सर्च रिक्वेस्ट जनरेट होते हैं? परहैप्स a trillion events of history between search providers. तो इसकी दो मॉडल हैं, गूगल एडवर्ड्स एंड गूगल एडसेंस। इस दो मॉडल पे बेसिकली गूगल अपना काम करता है। इसके बहुत सारे हिडन मॉडल्स भी हैं, क्योंकि बिजनेस है, उनका फार्मूला है, तो उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं। लेकिन यदि आप रिसर्च को एक्सप्लोर करेंगे, then you can find there are two models, that is Google AdWords and Google AdSense, जिसके थ्रू वो अपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो हमने अभी डिस्कस किया। Facts about data science. According to recent data, Google's top revenue shows in 2021 was search ads of the $256.74 billion in revenue the company brought in, pooping $148.95 billion from the search ads. Amazon, that is next listed giants, you can say that Amazon really is becoming a money-making machine, according to the report of CNBC. The online retailers generates revenue of more than $800,000 every single year through the data science. Here is some big company generating the revenue from data science. That is the 7 biggest brand company. You can see Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook, Tesla and Netflix. These are the top 7 companies which generating the revenue through the data science. This is the result for the 2021 first quarter. That is the we have taken these results from that is the website is Statistica, which explores the result which just we have discussed in the previous slide. Now, as we have already told you, data is nothing if you can't apply any algorithm or logic. So that is the approach is machine learning. आपके पास डेटा है, लेकिन उस डेटा से यदि आप कुछ एक्सप्लोर ना कर पाए, कुछ एक्सट्रैक्ट ना कर पाए, तो दैट इज बेसलेस। ओके, बिकॉज हम जो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक हम स्मॉल डेटा की बात नहीं कर रहे हैं, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं, बिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस, एक्सिलियंस डेटा की बात कर रहे हैं। उसको हम थ्योरेटिकल वे में एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको टूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब उस टूल्स को अप्लाई करने के लिए हमारे पास बिग प्रोसेसिंग मशीन भी होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम चाहें कि हम एक नॉर्मल मशीन से उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लें, दैट इज नॉट फीजिबल। हम एक नॉर्मल मेथड को अप्लाई करके
डेटा से इंफॉर्मेशन कैप्चर कर ले, दैट इज आल्सो नॉट फीजिबल। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को लगाना पड़ेगा, एंड दैट स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, डीप लर्निंग एल्गोरिथम एंड सो ऑन। अब हम ये देखते हैं कि मशीन को ट्रेन करना है। हम ट्रेन कैसे होते हैं, हमको ट्रेन करना, हम ऑब्जर्वेशन से ट्रेन होते हैं। हम देखते हैं जो हमारा कलीग कैसा काम कर रहा है, हमारी सोसाइटी कैसे काम कर रही है, नेचर कैसे काम कर रहा है, उसके थ्रू हम लर्न करते हैं। हम पेड़ पौधों से भी लर्न करते हैं, हम एनिमल से लर्न करते हैं, हम जो ओशियन में जो बहुत सारी जो मछलियाँ होती हैं या और बहुत सारे जीव होते हैं, उनकी बिहेवियर से भी लर्न करते हैं। ओके, लेकिन हमको ट्रेन करना है मशीन को, मशीन को ह्यूमन जैसा बनाना है। मशीन कैसा बिहेव करे, ह्यूमन जैसा सिमुलेट करे, मिमिक करे। आप देख रहे होंगे कि सोफिया एक रोबोट है ना, वो आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं वो आंसर करती है, उसके पास डेटाबेस में वो चीजें स्टोर है, वो आपको फेशियल रिकग्निशन भी करती है। हम हंस रहे हैं तो वो भी आप जैसा वो बिहेव करने लगती है, मतलब सिमुलेट करती है, आपके नेचर को सिमुलेट करती है। ओके, तो ह्यूमन लर्न्स फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड मशीन फॉलोज इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय ह्यूमंस। बट what if human can train the machine to learn from their past data and could act much faster than humans? ये कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट ही यहाँ से आया कि हम मशीन को लर्न कर रहे हैं, लर्न करा रहे हैं, मशीन सीख रही है। और किससे सीख रही है, डेटा से सीख रही है, डेटा के पैटर्न से सीख रही है, राइट। और कैसा बिहेव कर रही है, ह्यूमन जैसा बिहेव कर रही है, ह्यूमन जैसा सिमुलेट कर रही है, ह्यूमन जैसा मिमिक करने की कोशिश कर रही है। मशीन लर्निंग मींस मशीन लर्निंग फ्रॉम डेटा एंड मेकिंग इट इंटेलिजेंट सो दैट मशीन कैन बिहेव एंड मिमिक लाइक ह्यूमंस। इट मींस मशीन इज बिकमिंग इंटेलिजेंट थ्रू डेटा एंड द एल्गोरिथम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, अब हम ये कैसे काम करता है, ये मॉडल कैसे काम करता है, मशीन कैसे लर्न करती है। यू कैन सी हियर मशीन, यहाँ पर पास्ट डेटा, ये एक डायग्राम बना हुआ है, ये पास्ट डेटा है। यहाँ से हम एक ये मॉडल बना हुआ, ये वाला इसमें ये है क्या, और पॉइंटर है क्या, अच्छा काम नहीं करेगा, ओके फाइन। अब यहाँ पे ये डेटा है, ये मॉडल, बीच वाला जो पार्ट है मॉडल है। आप मॉडल कर सकते हैं, फ्रेमवर्क कर सकते हैं, एल्गोरिथम कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको कहना है, ऑलमोस्ट सभी चीजें एक है। अब हम इसको जब ट्रेन कर देंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे तो क्या कर देगा, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर देगा कि नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, उसको प्रेडिक्ट कर देगा। एंड दिस इज द मशीन लर्निंग। अब हमको ये देखना है कि ये जो हमारी प्रीवियस ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग अप्रोच था और अभी हम बात करें मशीन लर्निंग अप्रोच की, ये दोनों कैसे आपस में डिफरेंट हैं, राइट। पहले का जो अप्रोच था ट्रेडिशनल अप्रोच, उसमें हम क्या करते थे, एल्गोरिथम बनाते थे, या आप उसको प्रोग्राम कहें। प्रोग्राम बनाने के बाद उसमें डेटा को इन्फ्यूज करते थे, राइट, और उस हिसाब से रिजल्ट देता। आप सब होंगे कि डेटा को इनपुट करेंगे, जो लॉजिक बताएंगे उस लॉजिक के हिसाब से वो आंसर करते हैं। लेकिन अभी चेंज हो गया पैटर्न। इस पैटर्न में क्या है कि हमारे पास डेटा है, वो आंसर करा तो डेटा के पैटर्न को लर्न करा रहे हैं, उसका क्या बिहेवियर है, और उसके थ्रू हम रूल्स बना रहे हैं। पहले वाले में क्या था, रूल हम बना के देते थे, रूल
बनाते थे तो वो फिर आंसर आता था। और अभी हम कह रहे हैं डेटा के पैटर्न को देखकर मशीन खुद रूल बना रही है, राइट? और रूल बना के वो प्रेडिक्ट कर रही है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अब उसका एग्जांपल है, बहुत सारे रोबोट आजकल मार्केट में आ गए हैं। घर का यदि आपका हेल्पर जो है तो अभी हम लोग किसी ह्यूमन को रखते हैं, लेकिन कुछ दिन में आप देखेंगे कि कौन रहेगा, रोबोट आप खरीदेंगे, सबको रिप्लेस कर देने वाला है। अभी आप देखें जापान, कोरिया, यहाँ पे देखेंगे तो 50 to 60% रोबोट काम कर रहे हैं। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक प्रोफेसर के साथ एक टीचिंग असिस्टेंट अपॉइंट कर दिया है रोबोट को। टीचर का काम सिर्फ है कि वहां पे कॉन्सेप्ट को बताएगा, लेकिन बच्चों को यदि क्वेश्चन पूछना है रोबोट आंसर करेगा, ग्रेडिंग करना है तो रोबोट करेगा, क्वेश्चन पेपर बनाना है रोबोट करेगा, प्रोफेसर नहीं करेगा। प्रोफेसर सिर्फ कॉन्सेप्ट देगा, लॉजिक बताएगा, जो बेसिक चीज है, जो उसका थीम है, जो उसका ड्रीम है वो बताएगा। रेस्ट ऑफ द चीज पे वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और बहुत ये चाइना भी काफी आगे निकल चुका है इन सब चीजों में कि हम कैसे करेंगे। यदि आप पुली का देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे रोबोट बन गए हैं जो नहीं वो चल रहे हैं, सामान को उठा रहे हैं। आप देखेंगे खेत में फार्मर्स का पूरा काम रोबोट ही कर रहे हैं। तो आगे 10 to 20 इयर्स में आप देखेंगे कि फुल ऑफ मशीन्स होगी दुनिया, डिजिटल जो दुनिया है, डिजिटल सभी हो जाएंगी चीजें। या हो सकता है कि हम लोग जो आप लोग टीचर है हम आप सब रिप्लेस हो जाना है, मतलब पूरा तो रिप्लेस नहीं हो सकते, लेकिन 20 to 30% तो रिप्लेस हो ही सकते हैं। सर जापान में तो बुढ़े लोगों के साथ रहने के लिए कंपनी के लिए भी रोबोट। हाँ, अब जैसे कि हेल्थ केयर में आप देखिए तो हेल्थ केयर में आपको प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, लेकिन जब हेल्थ केयर हो जाएगा, ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन भी आपका वहीं से हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका प्रिस्क्रिप्शन चला जाएगा, आपकी रिपोर्ट डॉक्टर के पास चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। यदि आपकी धड़कन थोड़ा बढ़ रही है तो आपके फ्रेंड्स को कॉल चला जाएगा, आपके फैमिली को कॉल चला जाएगा, डॉक्टर को चला जाएगा, एम्बुलेंस को चला जाएगा, जो सिचुएशन होगी, और वो आपको पिकअप करके ले जाएगा, हॉस्पिटल में रख देगा और आपकी दवाई वगैरह सब कुछ हो जाएगी। तो ये दुनिया बदल रही है। सर्जरी कर रहे हैं, ऑटोमेटेड फॉर्मेट में कर रहे हैं। आपका पायलट ऑटो पायलट मोड में है, आप जो फ्लाइट में जाते हैं तो 80% काम आपका ऑटो पायलट मोड में होता है। तो सभी मशीन कर रही है। आपकी कार आ रही, ड्राइवरलेस कार आ रही है, वो सब एआई मशीन लर्निंग ही है। अब ये देखिए तो इसके आधार पे बहुत सारी फिल्म भी बन चुकी है। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट 1927 का है, लेकिन ये हमारे और आप तक आने में इतना टाइम लग गया। तो हम देखते हैं कि जो एआई बेस्ड मूवी है बहुत सारी, दैट इज द पार्ट ऑफ एआई एंड द मशीन लर्निंग। सो ये कॉन्सेप्ट एलन ट्यूरिंग ने दिया था 1936 में कि मशीन कैन थिंक एंड मिमिक लाइक ह्यूमंस। उनका एक कॉन्सेप्ट ये था कि मशीन जो है ह्यूमन जैसा मिमिक कर सकती है और ह्यूमन जैसा बिहेव करेगी। अब इसी के आधार पर उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट किया। अब बोरिंग तो नहीं लग रहा है? नहीं सर, बोरिंग नहीं लग रहा है, मैंने टेंशन हो रहा है क्या सभी के साथ टेंशन हो रही है। आने वाले समय में कितने लोग रिप्लेस होंगे? हाँ, बहुत रिप्लेसमेंट तो बहुत होगा, लेकिन नए जॉब्स भी आएंगे। आपको स्किल को डेवलप करना होगा। The Turing test is a method of inquiry in AI for determining whether or not computer is capable of thinking like a human being. ये टेस्ट है कि क्या ह्यूमन मशीन जो है ह्यूमन जैसा बिहेव कर सकती है कि नहीं कर सकती है।
इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं है जो कि ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर चुकी हो टिल डेट तक। ये इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतना हमने आपको बताया कि नहीं, ऑटोमेटेड कार हो गई है, ऑटो पायलट हो गया है, वो सब काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके टेस्ट को कोई पास नहीं कर पाया। The test is named after Alan Turing, the founder of the Turing test and an English computer scientist, cryptanalyst, mathematician and theoretical biologist. So despite major advances in the AI, no computer has ever passed the Turing test. अब इसी के आधार पे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मशीन जो है, एक वीडियो है, ये मूवी है, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कंप्यूटर जो है हमारे कॉग्निशन तक पहुंच चुका है, इमोशन तक पहुंच चुका है। तो 5 मूवी है, ये हमने कहीं से लिया है और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। AI or artificial intelligence is becoming a major buzzword in recent years. Knowing what it is and its practical applications in real life in the upcoming future leaves us stunned. Although we study exaggerate AI for dramatic effect, there is still some truth in these movies. There are AI experts who fear a super intelligent AI could outsmart us and eventually decide to wipe us off the face of the earth. On the flip side, AI is AI or artificial intelligence is becoming a major buzzword in recent years. Knowing what it is and its practical applications in real life in the upcoming future leaves us stunned. Although movies tend to exaggerate AI for dramatic effect, there is still some truth in these movies. There are AI experts who fear a super intelligent AI could outsmart us and eventually decide to wipe us off the face of the earth. On the flip side, AI is depicted as a miracle invention. These intelligent machines can perform analytical tasks such as simulations and predictions much better than humans. So if you're interested in AI, you should check out our top 5 AI movies list that you should never miss watching in life. But before we begin, if you're new here and haven't subscribed already, make sure to hit the subscribe button and the bell icon for interesting tech videos every day. Now let's get started. At number 5, we have Ex Machina. Ex Machina is one of the best examples of an AI movie. It covers all the bases, allowing the protagonist to be a proxy for the audience to explore AI's moral arguments, whilst also deploying a thriller narrative arc to hook the audience in. The film follows the story of a programmer who is allowed to be a part of an experiment to evaluate the capabilities of a highly advanced humanoid called Ava by his CEO. He is the first person to meet Ava, and his goal will be to test whether Ava passes the Turing test. What happens next carries the storyline forward and captivates the viewers in the process. The movie focuses on how we interact with AI as humans and how a machine could in turn manipulate humans. This movie is phenomenal and a definite do not miss. At number 4, we have the 1968 sci-fi classic 2001: A Space Odyssey. This movie is perhaps the most intricate and ambiguous movie on our list. The Stanley Kubrick masterpiece revolves around time, space, human nature and evolution, and the film is narrated in a non-linear direction with inexplicable cuts to different contexts. The film opens millions of years ago in a desert with apes discovering a giant black monolith. Under its influence, the apes then begin using bones as weapons. Then the film transitions to a space voyage to find the origins of a mysterious monolith in the far reaches of the galaxy. The spaceship functions are controlled by an artificial intelligence computer named HAL, which claims to be foolproof and incapable of making errors. However, during their space mission, the ship's crew gets double-crossed by HAL. When the error-free HAL makes an odd error, the astronauts decide to disconnect it from the ship's controls. But HAL, however, discovers their plan and goes rogue, killing most of the crew. Next, we have Metropolis ranked at number 3. Metropolis is a 1927 German film, and undoubtedly this movie served to be a pioneer for many AI-related movies.
Metropolis depicts a future world where the wealthy people of the society live in ease and luxury on the surface. In contrast, deep down in the city's underground, working class people labor out of sight on the machinery that supports Metropolis. In time, this oppressive situation eventually leads to a class conflict. Freda Frierson, being a member of the wealthy class, falls in love with a working class woman named Maria. He also discovers the crime scene under the city and is determined to help the workers. To sabotage his plan and his relationship with Maria, Freda's father and a scientist create a robot in Maria's image. Within the context of the film, the robot Maria seems to have its own mind that causes rebellion within the working class and eventually attempts to destroy Metropolis. With the massive popularity of Metropolis, the robot Maria stands as the first significant robot in the film industry. And for the first film attempt at AI, the storyline is absolutely incredible. It raises interesting moral questions about the possible human likeness of AI-based robotic creations. Moving ahead, we have Her at number 2. This movie highlights emotional intelligence in the form of human-robot romance. This movie reveals the direction humanity might be headed if artificial intelligence continues to evolve. The main lead of the film doesn't know what he wants from life and people after being pushed to the verge of divorce. His life takes an unexpected turn when he begins to find peace in the voice of his computer's new operating system, Samantha. The heartfelt conversations with the AI system Samantha makes him fall in love with her. Despite its advanced setting, the idea of this movie is alarmingly genuine and therein lies its brilliance. Given our dependence on innovation, AI voice assistants and virtual realities, we may soon witness relationships between devices. They are engaging, entertaining, yet sad. Last on our list is Pixar's masterpieces and one of the thought-provoking movies, WALL-E. WALL-E is an excellent contrast to other AI killer robots shown in films. WALL-E is the last solar-charged robot left on Earth. He spends his days tidying up the mess the humans created before leaving the planet Earth, one piece of garbage at a time. Yet, during 700 years, WALL-E has developed a character and he's terribly sad at being alone. Then at that point, he spots Eve, a smooth and more advanced AI bot sent back to Earth on a scanning mission to find any existence of life, ignoring WALL-E entirely as he was a robot. Smitten, WALL-E embarks on his most incredible adventure and follows Eve across the galaxy and along the Milky Way. WALL-E can't even talk, but his characteristics and mannerisms resemble human behaviors. Another significant aspect is that WALL-E tells a story where AI saves humanity rather than destroying it. This is interesting as it shows a sense of dependency and the needs of AI for creating a better future. WALL-E serves as one of the best AI movies that do well to combat fear, AI or art. ओके, तो आपने देखा कि क्या दुनिया होने जा रही है। ये हो चुका है, मतलब ये साई-फाई मूवी है, 1927 का कॉन्सेप्ट है और ये चीज़ें आज एग्जिस्ट कर रही हैं कि ये हमारे इमोशंस तक, जो कंप्यूटर है हमारे इमोशंस तक, इवन मशीन और मशीन का लव अफेयर हो रहा है। यू कैन थिंक इट। तो ये पोजीशन आएगी और ये बहुत ही भयावह होगी, क्योंकि बहुत सारे जो नेचर है, नेचर को भी डिस्ट्रॉय करेगी। ओके, तो मशीन कहाँ है, एआई का जो यूज है और मिसयूज भी है, राइट। अब हम आपको ले चल रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, हम एआई की बात करते हैं। अब एआई बढ़ के मशीन लर्निंग आया, मशीन लर्निंग से बढ़ के डीप लर्निंग आ गया और उसके बाद भी जनरेटिव लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें आ रही। क्योंकि यहाँ पर आप लोग हैं, एक हेट्रोजीनियस कम्युनिटी है, आर्ट्स के भी लोग हैं, साइंस के भी लोग हैं, कॉमर्स के भी लोग हैं, मैनेजमेंट के भी लोग हैं, तो उसको डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे अब। तो ये एआई जो हम बात करते हैं, एक बिग अम्ब्रेला है और उसके अंतर्गत ये दो मॉडल आते हैं। मशीन लर्निंग आता है और मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आता है। डीप लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स, जैसे हम यहाँ पे हैं,
और यहाँ पे हम लेक्चर दे रहे हैं, हो सकता है मेरा मान लिया कि मेरी फैमिली क्या कर रही है, या मेरे रिसर्च स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, या हम रास्ते में आ रहे थे तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, तो उस भयावह को भी हम सोच रहे हैं और यहाँ पे लेक्चर भी दे रहे हैं कि कई लेयर्स में डिवाइडेड है, मल्टीपल लेयर्स में डिवाइडेड है। तो दैट इज द डीप लर्निंग। ओके, मशीन को हम कई लेयर में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में सिर्फ 1-2 लेयर्स होती हैं, ये डिफरेंस है। ये हम डिस्कस भी किए हैं यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स एंड प्रोग्राम्स। एआई की जब बात करते हैं इसका मतलब हम मशीन को इंटेलिजेंट बना रहे हैं। ओके, मशीन लर्निंग का मतलब है एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। मशीन लर्निंग का मतलब डेटा को हम क्या कर रहे हैं, अपने आप में लर्निंग के लिए कि वो डेटा से ही लर्न करते हैं और रूल बनाते हैं। देन डीप लर्निंग का लर्निंग बेस्ड ऑन डीप न्यूरल नेटवर्क, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट है, इमोशंस है, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है, बहुत सारी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इमोशंस जनरेट होती हैं ह्यूमन बॉडी में। यही है डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग व्हिच इज टर्म्स इज a subset of AI, but for the actual similarities and differences between them are common way of illustrating how they are related as, जैसा कि मैंने डिस्कस कर दिया, इसको बताने की जरूरत नहीं है। Deep learning algorithms are essentially self-training in that they are able to analyze their own predictions and results to evaluate and adjust their accuracy over time. Deep learning में क्या होगा, वो ऑटोमेटिक वो लर्न कर लेगा, उसका प्रिसीजन वो डेवलप कर लेगा एंड सो ऑन। Deep learning algorithms are capable of independent learning. So these are basically inspired by the neural networks of the human brain, but obviously fall far short of achieving that level of sophistication. They are significantly more advanced than simpler machine learning models and are most advanced AI systems we are currently capable of building. अब ये वर्क कैसे करता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको आपको जरूरत है जानने की, है ना। इसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे मशीन लर्निंग के लिए पाइथन यूज होता है, स्केला यूज होता है, आर प्रोग्रामिंग आप लोग यूज करते होंगे जो सोशल साइंस से रिलेटेड होंगे, तो ये सब हम काम करते हैं। Learning process का मतलब the aspect of AI programming focus on acquiring data and creating rules for how to turn the data into the actionable information. अब इसमें नेक्स्ट प्रोसेस है रीजनिंग प्रोसेस, जो यूज करते हैं हम। इस एस्पेक्ट ऑफ एआई प्रोग्रामिंग फोकस ऑन चूजिंग द राइट एल्गोरिथम टू रीच द डिजायर्ड आउटकम। बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन हमको कौन सा एल्गोरिथम चूज करना है वो आता है रीजनिंग प्रोसेस में। सेल्फ करेक्शन के लिए होता है कि एल्गोरिथम ऑटोमेटिक अपने आप को फाइन ट्यून करता है। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहली बार ले जाएंगे तो हो सकता है कि हम कहीं पे हिट कर दें, लेकिन दोबारा जब जाएंगे तो हम थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे, क्योंकि मेरा ब्रेन क्या कर लिया, ट्रेन हो गया कि नहीं ऐसी सिचुएशन में ये लग सकता है, इतना क्लच हमको रखना है, इतना ब्रेक रखना है, इतना एक्सेलरेट करना है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम आपका सीख जाता है। इवन आप म्यूजिक सुन रहे हैं लेकिन आप कोई सामने आ जाता है तो ऑटोमेटिक आपका पाँव फंक्शन करने लगता है, राइट। तो वो आपकी मशीन ऑटोमेटिक लर्न कर लेती है उसको। ये है, ये जो कंप्यूटर साइंस से होंगे तो बेसिकली ये कैसे काम करता है इसका हमने एक अप्रोच दिया है। यहाँ पे आप देखें कि सबसे सारे डेटा आएगा, डेटा सब आता है, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा है, वो कुछ आपके यूज का होगा, कुछ आपके यूज का नहीं होगा, अनस्ट्रक्चर्ड है, राइट। तो उसको हम पहले क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि किसान लोगों के यहाँ जब वो चावल पहले धान निकालते हैं तो उसमें कचरा भी रहता है, बहुत सारे और वैरायटी के किस्म की चीजें आ जाती होंगी, तो उसको क्या करते हैं, वो फिल्टर करते हैं, है ना। फिर वो राइस को अलग कर देंगे और
और जो एलिमेंट्स होंगे उनको बाहर कर देंगे, कचरे को बाहर निकाल देंगे, तब वो खाने के लायक होता है। तो सेम चीज यहाँ पे डेटा के लिए है। डेटा हमारे पास तो ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा है, वो कुछ काम का भी है, कुछ नहीं है, कुछ नॉइजी है। तो अब उसको हम क्या करेंगे, प्री प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे डाटा को गैदर किया, फिर डेटा को प्री प्रोसेस किया कि जो काम की चीज है उसको रख दिया, जो काम की चीज नहीं है उसको ट्रंकेट कर दिया। ओके, फिर क्या करेंगे कि जो मॉडल बनाए, एआई मशीन लर्निंग का जो मॉडल बना हुआ, उसको उस डेटा को हम उस मॉडल में इंजेक्ट करेंगे, इन्फ्यूज करेंगे। ओके, अब उसके बाद क्या करेगा, ये जाता रहेगा, मेरा ये मॉडल है तो ट्रेन हो रहा है, एआई का मॉडल ट्रेन हो रहा है, और ट्रेन करके वो क्या कर रहा है, फिर मॉडल को हम टेस्ट भी करेंगे, रियली में वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसकी टेस्टिंग करेंगे। फिर यदि रिजल्ट प्रॉपर्ली आया है उस प्रिसीजन तक तो ओके है, यदि नहीं आया तो उसको पुनः ट्रेन करेंगे, और तब तक ट्रेन करते जाएंगे जब तक रिक्वायर्ड प्रिसीजन आपको नहीं मिलेगा, है? और फिर उसके हिसाब से हम उसका प्रिडिक्शन कर देंगे। जैसे आप देखते होंगे कि नहीं, वेदर का प्रिडिक्शन आ जाता है, तो वो देखते हैं कि क्लाउड कितना है, उसका क्लाउड का नेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, और उसके आधार पर वो एनालिसिस करके आपको प्रिडिक्ट बताते हैं। जैसे अभी न्यूज में आ रहा था कि नहीं पानी गिरेगा, 2-3 दिन पानी गिरने वाला, लेकिन अभी नहीं गिरा, हो सकता है 1-2 दिन, वो प्रिसीजन नहीं है, हो सकता है 2 दिन बाद पानी गिरे, राइट? तो सेम चीज यहाँ पे भी है। अब जो डेटा जनरेट हो रहा है तो ये कितने फॉर्मेट में जनरेट हो रहा है, आप देखते होंगे कि इमेज का भी डेटा है, हम लोग ये मूवी का भी डेटा है, अब टेक्सचुअल डेटा है, आप लोग ट्वीट कर रहे हैं उसका भी डेटा है, फेसबुक में कोई पेस्ट कर रहे हैं, इमोजी भेज रहे हैं, इमोशंस भेज रहे हैं, इमोजी बेसिकली क्या है, इमोशन है, इमोशंस आप भेज रहे हैं तो उसको भी एनालाइज करना है। तो डिफरेंट टाइप्स के ये जो डेटा होते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में हैं। वो कौन कौन सा फॉर्मेट है, एक तो न्यूमेरिकल डेटा है इसमें जैसे 1 2 3 4 5 ये सब है, दूसरा इमेज डेटा है जो पिक्सल के फॉर्मेट में है, राइट? नेक्स्ट है वीडियो डेटा है जो फ्रेम के फॉर्मेट में है, साउंड का डेटा जैसे हम बोल रहे हैं वेव्स है, फ्रीक्वेंसी है, टेक्स्ट डेटा है, ट्वीट है, कमेंट है, ट्वीट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए साउंड का डेटा है, तो जब महाभारत हुआ था तो कहते हैं कि वो एनर्जी तो डिस्ट्रॉय होती नहीं है, एनर्जी तो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो एनर्जी यदि कहीं है तो उसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगा के हम उसको कैप्चर करके उस आवाज को सुन सकते हैं। अब इट इज फीजिबल, हो सकता है कि फ्यूचर में आप लोग सब हम लोग सुन सके, इट इज आल्सो फीजिबल, क्योंकि एनर्जी तो है, एनर्जी किस फॉर्मेट, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में हम बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी है, चिड़िया बोलती है उसकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी वो समझ रही है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को नहीं समझ पा रहे हैं। कहते हैं कि जब फेक आता है तो जो चिड़िया होती हैं या और जीव होते हैं उनको पहले पता चल जाता है, क्योंकि उनके पास वो सेंस है। ह्यूमंस में भी कहते हैं कि जो लेडीज हैं तो उनके पास 6 सेंस है, हमारे पास नहीं है। That's true, ऐसा बोलते हैं, जो हमारी सोसाइटी कहती है उसको मैं बता रहा हूँ। तो ये सेंसेस है, राइट? तो ये डिफरेंट टाइप्स के ये डेटा होते हैं। अब ये कैसे मॉडल काम करता है, कैसे हम ट्रेन करते हैं मॉडल को, जैसे इनपुट सैंपल लेते हैं, फिर सिस्टम में करते हैं, फिर उसको ट्रेन करते हैं, फिर उसमें लर्निंग मेथड्स लगाते हैं और उसको टेस्ट करते जाते हैं। अब ट्रेनिंग डेटा के लिए अब मुझे डाउट हो रहा है कि आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, हमको बताना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर ओरिएंटेशन के लिए लेके आए थे। तो यहाँ पर ट्रेनिंग डेटा इज सेट ऑफ सैंपल्स सच एज कलेक्शन ऑफ फोटोज, वीडियोज, सेट ऑफ टेक्स्ट और ऑडियो फाइल्स एंड सो ऑन। फिर इसको टाइप कर देते हैं, दैट्स ऑल। हाँ, ये हम आपको बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूरा डेटा सेट है, उसको कुछ को हम ट्रेनिंग के लिए रख देंगे, कुछ को टेस्टिंग के लिए रख देंगे। जो ट्रेन करेंगे उसी का भी टेस्ट करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल से आपको बताते हैं, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप कार सीखने के लिए कर रहे हैं,
तो अब बनारस की पब्लिक के साथ आप यदि चलाएंगे तभी आप गाड़ी वहां पे चला पाएंगे। आप दिल्ली वाली पब्लिक के साथ करेंगे तो यहाँ भिड़ा देंगे गाड़ी भिड़ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जिस पॉपुलेशन को हम लेके चलेंगे उसी पॉपुलेशन के लिए हम टेस्ट भी करेंगे, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ट्रेनिंग सेट है, टेस्टिंग सेट है। ट्रेनिंग हम करेंगे फिर वैलिडेट करेंगे। आप जैसे कि कार को लेके जाते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बनवाने जाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स का वो उनका बना होता है, उसमें आपको चलाना है कि नहीं, लाइन के अंदर ही रहना है। तो आप तो ट्रेन हो गए हैं लेकिन वहां पे वैलिडेट आपको कर रहा है। यदि आप कहीं पे टच कर दिए तो आपको नहीं मिलेगा जब तक आपको सिफारिश नहीं इंडिया के फॉर्मेट में लेकिन रूल से यदि आप जाएंगे तो टच कर जाएगा। आपको बाइक करना है, सही पाथ में आपको पार करना है, सब कुछ आपको आना चाहिए। तो सेम चीज यहाँ पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं, नेचर से ही इंस्पायर्ड है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं नेचर से इंस्पायर्ड होकर कर रहे हैं, राइट। तो ट्रेनिंग करेंगे फिर वैलिडेट करेंगे फिर उसको टेस्ट करेंगे। अब ये हम ओपन सोर्स डेटा है, इंटरनेट से एआई बेस्ड बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं कि हम खुद सिंथेटिक डेटा उसको बोलते हैं कि हम खुद जनरेट करते हैं, लेकिन वो डेटा फिर हम टेस्ट करेंगे मशीन को तो वो सही नहीं होता। जो नेचर से बना डेटा होता है वो ज्यादा। अब कौन कौन से एल्गोरिथम होते हैं ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसमें कंप्यूटर का पार्ट आ रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नेचर से जोड़ के आपको समझाएं। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को इसको हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया है। बेसिकली 3 भागों में कैटेगराइज्ड होता है। एक तो सुपरवाइज्ड है, एक अनसुपरवाइज्ड है, एक रीइंफोर्समेंट एल्गोरिथम है। तो सुपरवाइज्ड का मतलब हो कि सभी चीजें कैटेगराइज्ड हो, ठीक है। जैसे आप घर पे गए और यहां से काम करके 8 घंटे का काम किए, आप अपना जैकेट उतारे, फेंक दिए, पर्स फेंक दिए, बैग फेंक दिए, लैपटॉप फेंक दिए और जाके चुपचाप लेट गए। एक तो एक अप्रोच हुआ। दूसरा अप्रोच है कि आप क्या करेंगे, नहीं आप अपना शर्ट अलमीरा में रखेंगे, बैग को जहाँ पे स्पेस है वहां रखेंगे, ठीक है ना। आप शू को कहाँ रखना है वो आप कैटेगराइज करके रखिए। तो यदि आप किसी चीज को जहां उसका स्थान है वहां पे यदि आप रख रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि सुपरवाइज्ड है। और यदि आप जिग जैग फॉर्मेट में रख दिए तो अनसुपरवाइज्ड है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो डेटा को भी हम इसी फॉर्मेट में रखते हैं कि बहुत सारा जैसे आपके कॉलेज के स्टूडेंट का डेटा है, आप वो बीसीए बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का है, बीबीए सेकंड सेमेस्टर का है, थर्ड का है, फोर्थ का है, फिफ्थ का है, सिक्स्थ का है, यदि आप सबको मर्ज कर दिए तो फिर किसी बच्चे का नाम यदि आपको निकालना होगा तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। लेकिन आप सेमेस्टर 1 का अल्फाबेटिकली आप रखे हुए हैं, रोल नंबर वाइज रखे हुए हैं, तुरंत फटाफट आप फाइल निकालेंगे और आप दे देंगे, तो दैट इज सुपरवाइज्ड, राइट। नाउ सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब हम यहाँ लर्निंग की बात कर रहे हैं। लर्निंग मतलब वेट भी दे रहे हैं। वेट का मतलब हो कि जैसे कि आप अमेज़न से कपड़ा खरीद रहे हैं, मीशो से कपड़ा खरीद रहे हैं या फ्लिपकार्ट से आप कोई सामान खरीद रहे हैं, तो खरीदने के पहले आप क्या करते हैं, उसका रिव्यू देखते हैं, है ना। 4 स्टार है, 5 स्टार है, हाँ इट्स ओके फाइन, ठीक है ले सकते हैं, उसके कमेंट्स पढ़ रहे हैं, वहां पे हम वेट लगा रहे हैं, फीडबैक देख रहे हैं। ये सिस्टम हम रीइंफोर्समेंट एल्गोरिथम आप इसको कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे ये सुपरवाइज्ड का देखो, यहाँ पे हरा डेटा मतलब सब कुछ मिक्स्ड है ना। फिर यहाँ इसको एनोटेट कर दिए, इनपुट कर दिए और आउटपुट में सब कैटेगराइज्ड फॉर्मेट में मिल रहा है। येलो वाला अलग, ब्लैक वाला अलग, पिंक वाला अलग, यहाँ पे सब मिक्स्ड है। सेमी सुपरवाइज्ड में सब रॉ डेटा है, सब कुछ मिक्स्ड है। यहाँ पे इंटरप्रेट किए, नोटेट किए, एल्गोरिथम लगाए, उस फॉर्मेट में मिल रहा है। अनसुपरवाइज्ड में भी ऐसा है,
देखिए रीइंफोर्समेंट में यहाँ पे देखो रिवार्ड दे दिए, यहाँ पे क्या आ गया इनपुट है, यहाँ पे इन्वायरमेंट है, रिवार्ड दे दिए, स्टेट एजेंट अप्लाई कर दिए, एक्शन लगा दिए, काफी है। तो आप उसमें क्या करते हैं, आप देखते हैं कि 4 स्टार है 5 स्टार है, तभी आप खरीदते हैं, है ना। कमेंट्स पढ़ते हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं, देखने में तो लग रहा है कि अच्छा है लेकिन है नहीं, तो आप उसको नहीं खरीदते हैं। अब इसके बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, जैसे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, ये आपको समझ में नहीं आएगा मुझे लग रहा है, तो इसको स्किप कर सकते हैं, है ना, कोई मतलब नहीं। ये सब मैथमेटिकल चीजें हैं, तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ये जैसे एक एग्जांपल मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क का, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आजकल फेशियल रिकॉग्निशन कर रहे हैं। आप फ्लाइट में जाते होंगे तो सबसे पहले क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन कराता है, डिग्री यात्रा वाला, है ना। आप जाते हैं तो आपका फोटो कैमरा में कैप्चर कर लेगा, उसके बाद आप कहीं पे भी जाएंगे वो फोटो आपकी सर्वर में स्टोर है। आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ से श्रीनगर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, जब आपका फेस मैच करेगा तभी वो आपको एंट्री देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो यहाँ पर ये है कि ये मैथमेटिकल फंक्शन है, तो हम जैसे मान लो एप्पल है ना, टोमेटो है, काऊ है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसकी इमेज जो उसके जो पॉइंट्स बने हुए हैं उनको डिफाइन कर देते हैं, और यदि उस फेस को उस कोऑर्डिनेट्स को मैच करता है वो, तो हम कहते हैं कि नहीं ये ह्यूमन है, कि ये लायन है, कि ये टाइगर है, कि ये डॉग है, कि ये कैट है, राइट, कि ये एप्पल है, ये क्या है। तो इसी को हम मतलब इसमें एल्गोरिथम लगा देते हैं और उसके कोऑर्डिनेट मैच करके तो एप्पल। जैसे आप हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये है, अब हमारा मोबाइल है, मोबाइल में क्या करते हैं हम देखते हैं फेस लगा हुआ, ऐसे किए तो रिकॉग्नाइज कर लिया, आवाज से भी रिकॉग्नाइज कर लेता है आजकल, आपके आइरिस से रिकॉग्नाइज कर लेगा, तो वो सब मशीन लर्निंग का ही कॉन्सेप्ट है। ये मैथमेटिकल है, तो ये हम आपको बताने की कोशिश की कैसे काम करता है, ये बात नहीं बताएंगे आपको। जैसे ये बहुत सारी चीजें हैं, ये एक साथ है, अब इसको आइडेंटिफाई करना है। ये मॉडल है, ये मॉडल लगा देते हैं कैसे काम करता है। तो यदि कंप्यूटर साइंस का कोई स्टूडेंट होगा तो उसके लिए इजी होगा, तो ये टेस्ट इमेज में आइडेंटिफाई कर लिया, उसके फीचर मिल गए तो ये बता दिया कि नहीं ये एप्पल है कि टोमेटो है। अब देखिए कितने एल्गोरिथम्स होते हैं, बहुत सारे हैं, जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन है, न्यूरल नेटवर्क है, नई पेज एल्गोरिथम है, बेसियन है, लॉजिस्टिक है, रेंडमाइज्ड फॉरेस्ट है, बूस्टेड डिसीजन ट्री है, के नियरेस्ट है, आरबीएम है। अभी रेस्ट्रिक्टेड बोर्ड में मशीन पे ही नोबेल प्राइज मिला है, फिजिक्स के प्रोफेसर को मिला, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर को मिला है। अब जैसे कि ये हमको ये आइडेंटिफाई करना कि ये बाइक है कि नहीं है, तो इसके सभी कोऑर्डिनेट्स को क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा। कोऑर्डिनेट्स को हमने डिफाइन कर दिया, ये यहाँ पे ब्रेक है, हैंडल है, ये है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये बाइक, ये अनसुपरवाइज है, आपको जैसा हमने बताया, ये वीकली सुपरवाइज है, कुछ चीजें सुपरवाइज, ये फुली सुपरवाइज, ये सभी चीजें लाइन है। नेक्स्ट वन डिजिटल सोसाइटी। आजकल की सोसाइटी जो है तो डिजिटल हो गई, और इसमें अभी आपने देखा होगा कि डिजिटल शादी भी हो रही है। हाँ, कि वहां पे यानी में जो दूल्हा दुल्हन नहीं बैठे हुए हैं और उनका एक रेप्लिका बैठा हुआ है, ओके, और ये इंडिया में हुआ है, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो मेटावर्स है,
Metaverse is a virtual reality space in which users can interact with the computer-generated environment with other users. It is a combination of augmented reality, virtual reality, and so on. So, in recent era, technology is rapidly changing the way we interact with the physical world around us. Metaverse is the upcoming new big technology in the industry. It is defined as the collection of technology gadgets. Metaverse में क्या है? Different amalgamation of the various technologies. The metaverse is a virtual shared space that everyone can access. It's a catch-all term that refers to the entire digital and virtual world. Metaverse, that is virtual reality and augmented reality, are invading healthcare, medicine, and innovative technology based on AR and VR are emerging to improve medical education and training as a well and process and procedures. मतलब आप जैसे मान लीजिए कि अभी महाकुंभ लगा हुआ और महाकुंभ में पूरा रोड जाम है इस समय। आप एमपी से बनारस नहीं जा सकते, एमपी से आप प्रयागराज नहीं जा सकते, एमपी से आप अयोध्या नहीं जा सकते, ऐसे अयोध्या से बनारस नहीं जा सकते, प्रयाग नहीं जा सकते, कहीं पे नहीं, पूरा जाम है। 6 लेन पूरा जाम है, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। बहुत सारे लोग प्रयागराज में आ गए हैं, काशी में भी आ गए हैं, अयोध्या में भी आ गए हैं। अब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, अब वो कैसे आएगा यहाँ पे? क्योंकि जो आना भी चाहे तो नहीं आ सकता। और उसके जो डॉक्टर हैं, जो पहले से डॉक्टर उसको देखे हैं, वो कहाँ पे अवेलेबल है? बनारस में। एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑगमेंटेड जो मेटावर्स है वो काम कर सकता है, क्योंकि उसकी 3D जो उसका इमेज है और उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसका फिनोमेनन, मतलब किसी को लीवर की डिजीज हो गई और उसको सिरोसिस हो गया, उसके सिरोसिस को मतलब उसके पेट में पानी आने लगा, राइट? अब उसको डॉक्टर को देखना है, कैसे देखेगा? जब तो फिजिकली आप नहीं ले आओगे तो वो नहीं बताएगा, प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता, लेकिन मेटावर्स के थ्रू वो कर सकता है, देख सकता है, 3D इमेज को देख सकता है, उसके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। ये फिजिबिलिटी आपको कौन सा स्कैन बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से तभी तो आइडेंटिफाई करेगा वो, ये तो पता नहीं चलेगा लीवर के अंदर क्या चल रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का एमलगमेशन है, इसके थ्रू वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है, चेक कर सकता है और उसको क्योर भी हो सकता है। प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा, दवाई कहीं पे भी आप ले सकते हैं। मेटावर्स का एक एग्जांपल है, ये टेक्नोलॉजी आप लोग डिले तो नहीं हो रहे हैं? नहीं सर। मेटावर्स का एक एग्जांपल है कि हमारे ग्रंथों में ये कहा गया है कि नारद जी कहीं पे भी पहुंच जाते थे, है ना? नारद जी को कॉल किया तो विष्णु जी के पास आ गए, शंकर जी के पास आ गए, जो उनको याद किया तुरंत विदिन नैनो सेकंड पहुंच जाते। कैसे पहुंच जाते? हमारे वेदों में क्या हुआ? तो वेदों की बात तो अब लग रहा है कि सच ही है, हम लोग मानते भी हैं कि सच है। तो उस टाइम पे ये मेटावर्स का कॉन्सेप्ट था कि डिजिटली को अवेलेबल हो, 3D इमेज। जैसे कि हम यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हम बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट हैं फॉर एग्जांपल, तो और हम चाहते हैं कि मेरा जो टॉक है पूरे ग्लोब में प्रसारित हो, या प्राइम मिनिस्टर का टॉक है, प्राइम मिनिस्टर का टॉक है तो वो चाहते हैं कि नहीं इंडोनेशिया में भी हो, कोलंबिया में भी हो, यूएस में भी हो, यूके में भी हो। तो यदि आप ऑडियो सुनोगे या नॉर्मल वीडियो सुनोगे तब तो आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा, वो फ्लेवर ही नहीं मिलेगा। तो मेटावर्स में क्या है कि आपकी 3D इमेज वहां पे चली जाएगी। यदि आप कॉल करेंगे, यदि यहाँ पे हम बुलाएं कि नहीं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्लीज कम, तो उनकी 3D रेप्लिका यहाँ पे आ जाएगी। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे रियल मैन है कि वो डिजिटल इमेज है। एंड दिस टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नाउ। अभी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। या आपको मार्केटिंग करना है
आपको मार्केटिंग करना है और आपको प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में लॉन्च करना है। तो या तो ये हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करें, वो यूके में भी जाए, यूएस में भी जाए और ऑस्ट्रिया में भी जाए और वहाँ जाके वो प्रेजेंट करें। तो उसका बहुत कॉस्ट है, क्योंकि आपको एयर फेयर देना पड़ेगा, रहने खाने पीने का देना पड़ेगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, राइट। तो उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, होलोग्राम टेक्नोलॉजी। होलोग्राम टेक्नोलॉजी के थ्रू आप किसी भी लैंग्वेज में, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर नाउ, आप हिंदी में बात कीजिए, आप बंगाली में बात कीजिए, आप गुजराती में बात कीजिए, आप इंग्लिश में बात कीजिए, आप कन्नड़ में बात कीजिए, आपको जो लैंग्वेज आती है उसमें आप बात कीजिए, और वो जिसमें आप सुनना चाहते हैं आप उसमें सुन सकते हैं। आप अपने लोकल डायलेक्ट में सुन सकते हैं। आपको भोजपुरी में सुना, भोजपुरी में सुनिए। कोई अंग्रेजी बोल रहा है, जर्मन में बोल रहा है, डजंट मैटर। लैंग्वेज इज जस्ट कम्युनिकेशन, कि हम आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी थी। टीवी वाला जो संजय का था महाभारत में, वो देख के बता देते थे, वो टेक्नोलॉजी थी। विमान की बात करें तो कौन सा विमान था? पुष्पक विमान ऑलरेडी था। तो ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, जो आज हम कर रहे हैं, बल्कि अभी हम बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी। ये देखिए, मैरिज इन मेटावर्स, India's first metaverse wedding. A couple from Tamil Nadu brought tradition and technology together when they hosted their wedding reception in the metaverse. Dinesh SP and Jagannandini Ramaswamy got married on February 6, 2022 in Sivalingapuram, a small tribal village of Tamil Nadu. However, friends and family from across the world were able to attend the wedding that followed as it took place in virtual world. So guests attended a virtual reception in the metaverse as a digital avatar. आप लोग देखते हुए अवतार आता है आजकल इसमें, मोबाइल में भी आता है ना, आप अपना अवतार डाल सकते हैं। तो ये इनका ये डिजिटल अवतार है। तो ये वेडिंग इंडिया कहीं पीछे नहीं है। होलोग्राम टेक्नोलॉजी के बारे में हमने आपको बताया कि 3D वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर देता है, और इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, इसको डेटा साइंस है, मशीन। ये वीडियो है जो मैंने होलोग्राम टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, जिसको आप देखिए कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी होलोग्राम ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी जो हम बात कर रहे हैं, तो कैसे ऑन करें। Here in Las Vegas to present to you. Now I get invited to do keynotes across the globe. And while it's easy for me to be here in Las Vegas, it isn't always easy for me to travel across the world. And even when I do, I can't always speak the local language. Well, what if neither language nor distance mattered for me to deliver a fantastic keynote? What if technology could help me be anywhere I needed to be and speak any language I wanted? Well, it can. We are bringing together the power of mixed reality and Azure AI services to create a truly game-changing experience. What you're about to see is an exact hologram of me wearing the same outfit that we recently captured at a mixed reality studio. And I don't speak Japanese, but what if I wanted to deliver my keynote in Japanese? Using Azure AI technology, I can translate my English into Japanese and train it to sound exactly like me. The same voice tones, those same inflections. And we brought this together, my hologram and Azure AI, to show you what's possible. So first, I'm going to put on my HoloLens 2 here, and then we'll flip in the room to a special camera so you can see exactly what I'm seeing. Let's get started. First, let me introduce you to Mini-Me. There she is, my perfect hologram. And thanks to the power of HoloLens 2, she just floats right with me. I'm literally holding
natural. Now she's a little small to do a keynote. So let's get her up so she can do full-size Japanese keynote. Render keynote.私たちは最新の複合現実キャプチャー技術を使用し、私のホログラムを作成しています。実在の人物をホログラムとして見たことがあるかもしれませんが、私が実際に日本語を話しているのが新しいのです。私は日本語を話しませんが、私の声とホログラムは完璧な日本語で話しています。これはニューラルテキスト読み上げと呼ばれる最新の人工知能技術、いわゆるニューラル TTS を使用しています。私たちは自分の声の録音を使用し、私のように聞こえる私自身の個人的な音声書面を作成します。日本語からフランス語、ポルトガル語まで話せます。今、この技術は私たちが働き、遊び、生活する方法に関して、世界中の国境や障壁を取り除くことができると想像してみてください。まさに SF が現実になるところです。As you can see, this is mind-blowing technology. And what you just saw was my life-size hologram, my exact replica, rendered here in real time, speaking Japanese with my unique voice signature. To do this, we use mixed reality technology to create my hologram and render it here live. Then we use Azure speech-to-text capability and English transcription to get my speech. Then use Azure Translate to get the speech into Japanese, and finally applied neural text-to-speech technology so it sounded exactly like me, just speaking Japanese. And the most amazing part? All of these technologies exist today. The future is here. अब देख लीजिए कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँची और ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है। ये यूरोप में, यूएस में ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है और हो सकता है कि अभी 2-4-6 साल में इंडिया में आ जाएगी। ये टेक्नोलॉजी है, ये एआई है। एनी क्वेश्चन? आप देखिए कि यहाँ पे उसके पूरे इमोशंस हैं, उसका स्टाइल है बात करने का, और माने अंग्रेजी में बोले तो जापानी में हो गया, आप उसको किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, आप बस आपको क्लिक करना है, लैंग्वेज को चूज करना है। तो ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही, तो हमारे जो पूर्वजों के पास ये वेदों में जो लिखा हुआ है वो सच है, उसमें आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू ऑल। एनी क्वेश्चन? हाँ, तो उसमें शादी लिखा है आई एम नॉट रोबोट। हाँ, तो मतलब क्या है मतलब क्या रोबोट ये कैसे भाग नहीं सकता? नहीं, वो भाग सकता है, लेकिन उसमें बेसिकली है कि आजकल मिमिक कर रहे हैं, और आप देखेंगे इमेज फॉर्मेट में भी आ रहा है, है ना, या वॉइस में भी आ रहा है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करने के लिए सर्वर को स्पेस देने की बात है, अदरवाइज हैंग हो जाते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेटा साथ में आ रहे हैं, तो हम उसको स्पेस दे रहा है। उसके पीछे का एक रीजन ये भी है, और दूसरा ये है कि क्योंकि सोसाइटी आपकी डिजिटल हो गई है, तो डिजिटल सोसाइटी होने की वजह से वो उसके जो इथिक्स हैं, इथिक्स को फॉलो करने के लिए उसमें आपसे पूछता है कि हम रोबोट नहीं, क्योंकि रोबोट को परमिशन नहीं है, सिर्फ ह्यूमन कर सकता है। नेक्स्ट वन। सर मेरे दो प्रश्न हैं सर। जी। पहला जो प्रश्न है वो है कि हमने जैसे ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में सुना, और क्या मार्वल्स है ओके उसको भी हमने देखा। जब भी वी गो टू विजिट अ वेबसाइट लेट्स से, कभी-कभी ऐसा आता है कि वेरीफाई कीजिए आप ह्यूमन है कि नहीं, और उसमें कुछ इमेजेस आते हैं, उन इमेजेस में हमको आइडेंटिफाई करना रहता है इसमें गाड़ी है कि नहीं, इसमें सीढ़ी है कि नहीं। सो इज दिस अ काइंड ऑफ लाइक ट्यूरिंग टेस्ट
in a way, or it's like this machine any kind of machine वो not able to do that? बेसिकली अभी ये जो इसके पीछे की जो लॉजिक है वो डेटा को भी लर्न करा रहा है, डेटा को भी लर्न करा रहा कि उधर मशीन भी आपको बैक एंड में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है, आप उसका सिर्फ फेस वाला पार्ट देख रहे हैं, बैक वाला पार्ट नहीं देख रहे हैं कि कंपनियां क्या कर रही हैं। तो वो मशीन को ट्रेन भी कर रही हैं, आपका डेटा लेके कि कितना प्रिसीजन हो गया। तो ये अभी मशीन नहीं कर सकती। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा एंगल रहता है कि जो मशीन उसको आइडेंटिफाई उस प्रिसीजन तक नहीं कर पाते हैं, ऐसा है। लेकिन वो मशीन को ट्रेन करते हैं, उसी के आधार पे मशीन ट्रेन हो जाती है, तो जो कमियां रहती है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो वो उसके पीछे भी उनका बिजनेस उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न जो है लास्ट में आपने जो मॉडल दिखाया है उस पे एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज लर्निंग का क्या फायदा रहेगा अगर सब लाइक राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग टू डिपेंड ऑन एआई, एआई पे डिपेंड करना शुरू कर दिए हैं। In time, if language becomes something that is not required because of AI, why learn language? It's a philosophical thought. It's a question in that way. हाँ, देखिए बहुत सारे आज आप कल देखिए चैट GPT 4 आ गया, जनरेटिव AI है ना। तो चैट GPT 4 अभी तक क्या था कि हम टेस्ट को मैनिपुलेट कर सकते थे, टेस्ट का समराइजेशन कर सकते थे। चैट GPT का जो प्रो वर्जन आया है उसमें आप ये चाहेंगे नहीं हमको ताज होटल जैसा स्ट्रक्चर बन जाए या उससे बेटर स्ट्रक्चर बन जाए, तो वो भी बना के आपको दे देगा। वो मतलब इमेज को भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है, राइट। तो आपका क्वेश्चन क्या था? वही कि लैंग्वेज इज लार्जली फिलोसॉफिकल क्वेश्चन क्या रहेगी। लैंग्वेज लर्निंग का लैंग्वेज द बैरियर, अब बैरियर नहीं रहा एआई के बाद। तो नहीं, लैंग्वेज कौन सी नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज नहीं, वो इजीनेस के लिए। जैसे मान लीजिए हम मेरी मदर टंग हिंदी है, एक मिनट बात सुनिए, मेरी मदर टंग हिंदी है तो हम क्यों दूसरे की भाषा बोलते हैं? जापानी लोग तो अपनी भाषा बोलते हैं, चाइनीज अपनी भाषा बोलते हैं। देखिए जो आपकी मदर टंग है आपके इमोशंस उसी में बनेंगे, जिसमें आप सपना देखते हैं वही आपकी लैंग्वेज है। आप अंग्रेजी में सपना नहीं देखते हैं, आप अपनी मदर टंग में सपना देखते हैं। तो हमारा जो जेनेटिक आर्डर है वो किस में है? हिंदी में है या उर्दू में है या बंगाली में, जो जिस कल्चर से आया है। सर आई दैट्स माय पॉइंट कि हम लोग जिस तरह के एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, वी आर नॉट सिंगल लैंग्वेज स्पीकर्स, मोस्टली वी आर पॉलीग्लॉट्स। वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड इन दैट वे हमारा ब्रेन का जो फंक्शन है इट इज ऑफ हायर ऑर्डर than someone who speaks one language. So basically AI is converting us into basic models who will know only one language because AI is doing the rest. So in a way it's regressive for human. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप खुद जैसे आप जैसे चैट GPT यूज कर रहे हैं तो समराइज करके खुद आपको दे रहा है, तो आपका इनोवेशन कम हो रहा है, आपको लॉजिक नहीं लगा रहे हैं। कैलकुलेटर आ गया तो आप पहले के लोग कैलकुलेशन कर देते थे 10 डिजिट में, अभी आप बच्चे से बोलेंगे 2 into 2 तो वो कैलकुलेटर यूज करके 2 into 2 4 होता है कि नहीं कंफर्म करेगा, वैलिडेट करेगा उसको कि 2 into 2 4 होता है कि नहीं होता है। तो नेचुरल है कि वो तो टेक्नोलॉजी आ रही है तो आपको पैरालाइज कर ही रही है, लेकिन आपको उसका यूज देखना है, आपको उसके मिसयूज पे नहीं जाना है। आपको किसी ने रोका नहीं कि आप 10 लैंग्वेज पर जानिए, जो नहीं जानता उसके लिए। लेकिन सर इससे बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट होती थी, जैसे कोई जापानीज लर्न करता था तो जो है कि लैंग्वेज चेंज लेकिन टेक्नोलॉजी जो बनती है तो टेक्नोलॉजी का उद्देश्य ये नहीं होता कि जॉब क्रिएटर है कि जॉब को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसका उद्देश्य है कि हमको आप ह्यूमन को असिस्ट करने के लिए। तो जब ह्यूमन को असिस्ट कर रहा है तो नेचुरल है कि नए जॉब आएंगे, हमको स्किल उस लेवल तक बनना पड़ेगा। स्किल डेवलप, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी एआई की वजह से बहुत सारे जॉब चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, लो लेवल वाले जॉब चले जाएंगे। अब देखिए कार है, अभी ऐसे ऑटोमेटेड कार आ रही हैं, ड्राइवरलेस कार आ रही हैं, तो पहले जो पंचर बन जाता था तो वो पंचर नहीं बन पाएगा क्योंकि सब सॉफ्टवेयर बेस्ड कार आ रही हैं। वो खुद चेक कर रही है कि इसका प्रेशर कितना है, क्या माइलेज है,
कितनी डिस्टेंस पे इंजन गर्म हो रहा है, क्या है, वो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर पाएगा। उसके लिए स्किल्ड पर्सन वो रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। तो हमको अपने आप को स्किल्ड वे में आना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा सोचना, ये मेरा खुद का परसेप्शन है, मैं कोई नहीं बोल रहा हूँ। सर हमारे मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स ही अपनानी पड़ेगी। एआई में जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो लॉजिक की बात करते हैं। तो जितने इक्वेशंस हैं, जो कुछ भी है, तो वो लॉजिक तो मैथमेटिक्स ही है। उसके बिना कुछ तो सर हम हमारे जैसे मैथ्स के जो बीएससी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम आगे अगर वो एआई पे काम करना चाहते हैं तो उनको किस लैंग्वेज के लिए हम बोले कि तुम ऑनलाइन इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाकर इस लैंग्वेज को सीखो, जिससे आगे तुम एआई में करियर अपना बना सकते हो। देखिए अभी एआई जो है, अभी तो उसको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, फिर प्रोग्रामिंग जैसे पाइथन पढ़ना पड़ेगा डेटा एनालिटिक्स के लिए, तो उसको बेसिक तो और पढ़ना पड़ेगा। मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन करके वो मास्टर नहीं, उसको हम आगे के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज सीखने के लिए, जैसे बेसिक लेवल पे है पाइथन है, तो किस लैंग्वेज को सीखने के लिए उनको हम बोले बच्चों को, स्टूडेंट्स को, किस लैंग्वेज को अगर आप आगे सीखोगे तो जैसे एमबीए काम करते हो, फिर कंपनी में जैसे एआई के लिए कुछ जॉब निकल गई तो उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। देखिए जो करियर के लिए तो आप किसी भी एक लैंग्वेज में स्किल्ड हो जाइए। आपको स्किल्ड हो जाए, चाय बनाने वाला है तो यदि वो चाय अच्छी बनाएगा तो उसके पास सब लोग जाएंगे। 5 रुपए की जो चाय मिलती है वो 10 में जाएगा तो आप 10 वाले के पास जाएंगे। स्किल्ड होना जरूरी है, ये नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ लें। आप पाइथन अच्छे से पढ़ लो, उसमें मास्टरी हासिल कर लो कि आप कितना अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं। आपको सी पढ़ना है, सी ही अच्छी तरह से पढ़ लो। लेकिन हम लोगों की प्रॉब्लम है कि हम सब जानना चाहते हैं और सब जानने के चक्कर में कुछ नहीं एआई बेस्ड जैसे कि जब हम कोई प्रोग्राम की एनालिसिस करते हैं तो डेटा को हमारे ट्रेन कर रहा है, लेकिन वो उसका यूज नहीं कर पाएंगे। वो सर्वर में किसके हैं? कंपनी वाले के। तो कंपनी कंपनी देखिए, बिजनेस का मतलब हुआ कि आपके पैकेट से पैसा निकाल के अपने पैकेट में डाल दे, बिजनेस का मतलब ये है। तो कंपनियां भी बिजनेस कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं? आपसे डेटा जो फ्री में दे रही हैं, आपको जीमेल का 15 GB फ्री दे रही हैं, तो आपको फ्री नहीं दे रही हैं, आपसे वो कमा रही हैं और बहुत ज्यादा कमा रही हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, फ्री है फ्री दे दे। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज फ्री। सर एक हमने वो कोई मतलब मैसेज देखा था कि आपका फोन सब कुछ सुन रहा है। हाँ दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। इवन इतना ही नहीं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपका जो मेमोरी है, हम लोग चाहते हैं कि 256 GB की मेमोरी हमारे मोबाइल में रहे, टीवी में रहे, लेकिन कंपनी क्या कर रही है कि एज एनालिटिक्स है, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो आपका मोबाइल ऑन है और स्पेस में, मेमोरी तो स्पेस में है, क्योंकि साइबर से सब जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से कनेक्टेड है 24 आवर्स। आपका इंटरनेट, आपको पानी ना मिले, खाने ना मिले, लेकिन इंटरनेट होना चाहिए। दैट्स वो सबके साथ है। तो वो जितना स्पेस हमारा खाली है, जितना प्रोसेसिंग स्पीड हमारी खाली है, वो सब कंपनी वाले यूज कर रहे हैं और उसको हम एज कंप्यूटिंग बोलते हैं। जैसे क्लाउड में अभी डेटा है तो यूएस में उसका सर्वर है, अमेजन का सर्वर यूएस में है, जीमेल का यूएस में है, तो वहां से डेटा को अपने यहाँ तक कैप्चर करना। जैसे जीमेल का डेटा आप डाल देते हो तो उसके सर्वर में स्टोर है, फिर वो किसके कम्युनिकेशन के थ्रू आ रहा है? इंटरनेट के थ्रू आप उसको कॉल कर रहे हो तब आ रहा है। तो कंपनियां का क्या कर रही है, बहुत सारा बिलियंस ट्रिलियंस डेटा डेली आ रहे हैं, पर सेकंड नैनो सेकंड जनरेट हो रहा है, तो उनको प्रोसेस करने में दिक्कत आ रही है। वो क्या कर रहे हैं कि जो लोकल डिवाइसेस हैं उन
उनका स्पेस जो बचा हुआ है एक थ्रेशोल्ड बना दे रहे हैं कि रेंज बना दे रहे हैं, उतना छोड़ के पूरा वो यूज कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। आवाज छोड़, आप तो छोड़ दिए, आवाज तो सुन ही रहा है, आप माइक्रोफोन ऑन करेंगे नेचुरल है, जब तक आप ऑन किए हुए तो सुन रहा है, ऑफ कर देंगे एल्गोरिथम देगा वो। हाँ बिल्कुल, आप कुछ भी बात करेंगे आपको एडवर्टीजमेंट वही दिखाएगा, सुन रहा है तभी तो दिखा रहा है ना। वो सब टेस्टिंग में जा रहे हैं, आपका कुछ भी नहीं है, आप सब जानता है वो, और जब डिस्ट्रॉय करना हो तो डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपका इंटरनेट अकाउंटिंग है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है। और हम लोग जब कंडीशन आती है तो हम लोग घबरा के साथ एग्री कर लेते हैं कि कहीं ये चल ना जाए, पढ़ते उठते तो नहीं है उसको एग्री कर लेते हैं।